Hello everyone. Today we continue our same topic, that is French Revolution. Heading is changed. Okay. Now, previously we studied about that who is the king of France. Okay, who was the king of France? The Louis XVI was the king of France. Her wife is Marie Antoinette, an Austrian princess. Then after, what is society? Which type of society exists before revolution? Okay, that is the society of France is divided into three parts: the clergy, nobility, and the third one is third state. Okay, the first state is known as clergy, second state is known as nobility, and the third state is known as third state. Okay, in third state there were number of peoples included. Okay, as we know that in clergy the priest, the fathers and the priest of churches were there. Okay, in nobility the family members of king and the relatives of king and the high rankers, high ranked workers were there in the nobility who belongs from the rich family or elite family. Okay, now in third state all the big businessmen, merchants, traders, farmers, landless peasants, servants, and servants were there. Okay, and the rest of etc. number of peoples were there. Those were not included or exist in state 1 and state 2. Okay, now one more thing, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी, और थर्ड स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट कोई टैक्सेस पे नहीं करता था, थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था. एज third state need to pay tax, that's why the tax and they are not coping up with increasing tax, that's why the third state is facing problem. Now king decided, due to several reasons, that the king was the nation was falling in debt, so the king decided that they ultimately decided to increase the taxes, and as we know that taxes is only paid by third state, so the third state ultimately or in future may face problem. So what type of taxes are there is a very basic topic of our today in today's video. Okay, so now what happened? Taxes in France. Okay, now I'll come here so you will get a very clear taxes in France. Okay, so the first tax which is paid by the peasants are tithe. Okay, tithe or tethe, whatever you pronounce, but its spelling should be TITHE. Okay, tithe. ये वो टैक्स था जो चर्च को पे किया जाता था पीसेंट्स के द्वारा. ठीक है, पीसेंट्स चर्च को पे करते थे, पहली बात है ना वो. उसके बाद 1/3 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, 10/3 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, पीसेंट्स को ना. व्हाट इज टेले? टेले इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि व्यक्ति सरकार को डायरेक्टली देता था, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो पीसेंट हो, whomsoever he is. ओके, कोई भी हो, उसको क्या करना पड़ता था? डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें इनकम टैक्स भरना है, वो जो इनकम टैक्स जैसे हम आज के टाइम पे भरते हैं वैसे ही डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था अपने वर्क का, अपनी सर्विसेज का. किसको? किंग को. ठीक है, हम आज गवर्नमेंट को देते हैं, और उस समय टेले नाम का जो टैक्स था वो व्यक्ति थर्ड स्टेट के लोग किसको देते थे? किंग को. ना ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस इन फ्रांस, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज टेले, indirect taxes and the direct tax is also tithe. Okay, उसके बाद फिर क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका सॉल्ट और टोबैको का टैक्सेस रहते थे. जैसे हमें टोबैको अगर हमने यूज़ किया है, हमने परचेस किया है, तो उसको हमें उसका टैक्स दे के उसे खरीदना पड़ता था, या अगर हम सॉल्ट वगैरह परचेस कर रहे हैं तो उसका टैक्स हमें दे के खरीदना पड़ता था. ओके, सो दिस मच आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. नाउ जैसा कि मैंने आपको कल पहले बताया था कि थर्ड स्टेट को ही बस टैक्स देना पड़ता था, और थर्ड स्टेट की जो पीसेंट्स और लैंडलेस लेबर्स थे, या जो भी पीसेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको क्या करना पड़ता था? चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, है ना. ना हियर चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था. चर्च कौन? जो फादर्स हैं, क्लर्जीज हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता था, है ना. क्योंकि चर्च को फ्रांस में या कैथोलिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है? बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है. दैट्स वाई चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था, है ना. चर्च को, पीसेंट्स और फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी देना पड़ता था उनका, है ना. इतना समझ में आया ना. नाउ वी कंटिन्यू, नाउ वी स्टेप टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रगल टू सर्वाइव. ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल टू सर्वाइव. हुआ क्या कि 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस की. 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस की. आफ्टर दैट वो 1789 में हो गई 28 मिलियन.
देखो अगर मिलियन में पॉपुलेशन नहीं समझ में आ रही तो 2 करोड़ 3 लाख पॉपुलेशन थी का 1715 में, और 2 करोड़ 8 लाख पॉपुलेशन हो गई, सॉरी 2 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन थी का 1715 में, और 2 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन हो गई का 1789 में। तो पॉपुलेशन बढ़ी जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ी। चूंकि प्रोडक्शन कम हो रहा था और डिमांड बढ़ती जा रही थी, इसलिए जो प्राइस था फूड का वो बढ़ गया, है ना। फूड की जो डिमांड थी वो बढ़ी जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो रहा था बट डिमांड ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो प्राइस था ब्रेड का वो बढ़ा, है ना, प्राइस बढ़ गया ब्रेड का। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो प्राइस बढ़ा जिसके कारण क्या हुआ, गरीब लोग इसे खरीद नहीं पाए। क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि इनके वेजेस फिक्स्ड थी, उनकी वेजेस फिक्स्ड थी बट प्राइस जो थे वो फूड के बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। चूंकि वेजेस फिक्स्ड थी और प्राइस जो थे वेजेस के वो वेजेस फिक्स्ड थी और प्राइस जो थे फूड के वो बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो लोग पेस कीप नहीं कर पा रहे थे, मतलब दे आर नॉट कीपिंग पेस विद द प्राइस। जो प्राइस बढ़ रहा था उनकी वेज उस प्राइस को नहीं मिला पा रही थी, है ना। यहाँ पेस का मतलब है कि उस रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, ठीक है। जो वेजेस थी प्राइस के रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, जिसके कारण कई बार वो लोग खाना भी नहीं खरीद पाते थे, ठीक है। ब्रेड इज अ बेसिक स्टेपल फूड, जैसे हमारे यहाँ रोटी या चपाती रहती है ना इंडियन कल्चर में, या राइस की अगर हम बात करें हमारी बेसिक स्टेपल फूड है, वैसी जो ब्रेड है ना, लॉफ ऑफ ब्रेड, है ना, ब्रेड का एक टुकड़ा या लॉफ ऑफ ब्रेड is a basic staple food of what, European countries. So bread is a very basic staple food of France similarly. So that's why the increase of price of the bread create a very big problem that people are not able to purchase that bread. So ultimately what happened, that there is a very broad division between richer and poor peoples. गरीब और अमीर लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिवीजन हो गया और जिसके कारण लोग आपस में बहुत ज़्यादा परेशान हुए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीबों को हुई, ठीक है। जो फार्मर्स थे, जो पीसेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जिनकी वेजेस फिक्स थी पर उनकी वेजेस बढ़ नहीं रही थी, है ना, वो लोग एक बार हमने जॉब किया, वहाँ हमारी वेजेस फिक्स हो गई, जिसके कारण क्या होता है, अब भले ही मार्केट में कितना भी प्राइस बढ़े, उससे एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयर आपकी वेजेस नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको क्या, उसका तो फायदा हो रहा है ना। तो वैसे ही हुआ कि जो फ्रांस में क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, है ना, जो वर्कर्स थे वो लोगों की वेजेस फिक्स्ड थी, जिसके कारण क्या होगा, उनकी फिक्स वेजेस के कारण, उनकी वेजेस फिक्स होने के कारण प्राइस तो बढ़ रहे थे पर उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण कई बार उनको भूखा भी रहना पड़ता था। फिर उसके बाद एक और बात ऐसी आती थी कि अगर हमने खरीद भी लिया तो कई बार ऐसा होता था कि जो प्रोडक्शन रहता था वो कम हो जाता था। प्रोडक्शन क्यों कम होता था, प्रोडक्शन इन द सेंस जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होते हैं, राइस, वीट, है ना, वीट या वीट, है ना, वीट से बनती है ब्रेड, तो बिल्कुल प्योर फ्लोर से। तो ड्रॉट और फ्लड और कोल्ड वेदर के कारण भी कई बार क्या होता था, कई बार ड्रॉट, फ्लड और कोल्ड वेदर के कारण भी क्या होता था कि वहाँ क्रॉप खराब प्रोडक्शन होता था, बैड प्रोडक्शन होता था। बैड प्रोडक्शन के कारण क्या होता था, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, प्राइस और बढ़ जाते थे। प्राइस और राइज होने के कारण दे फेस अ प्रॉब्लम विच इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। नाउ व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस? सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जब पीपल जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी ना कर पाए। खाना एक बेसिक नीड है ना। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में गरीबों को या जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं उनको सबसिस्टेंस क्राइसिस है, तो ये सेंटेंस सही होगा, बिकॉज दे आर फेसिंग फूड प्रॉब्लम। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है द पीपल हु आर नॉट fulfilling their basic needs. Now you are getting my point. क्या होता है subsistence crisis? Subsistence crisis का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है। और ये फ्रांस में कई बार हुआ ये सबसिस्टेंस क्राइसिस 1789 तक, है ना। बुक में लिखा हुआ है, इट हैपेंड फ्रीक्वेंटली इन बिफोर 1789 एंड और इन ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम मतलब कि 1789 के पहले या 1789 तक सबसिस्टेंस क्राइसिस कई बार फ्रांस में देखी गई है ना। यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लासेस एंड विसेजेस। ओके, नाउ हुआ क्या कि जैसी रेवोल्यूशन अब स्टार्ट होने का कोई रीजन होना चाहिए ना कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होगी। अभी टैक्स इम्पोज नहीं हुए पर इम्पोज होने का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, ठीक है। हमने अभी देखा क्या कि रेवोल्यूशन होने के कई सारे रीजंस जनरेट हो रहे हैं, जैसे टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं वेजेस के, है ना। उसी में एक रीजन है क्या, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। होता क्या है कि 18th सेंचुरी मतलब कि 1701 के बीच में 1701 से लेके 1799 के बीच में 1774 1789 है ना, उसके करीब में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास एक नया सोशल ग्रुप जनरेट हुआ जिसे हम मिडिल क्लास कहने लगे, ठीक है।
इस मिडिल क्लास में कौन थे? थर्ड स्टेट या आउट होगा, जिसमें लॉयर्स, मर्चेंट्स, पीसेंट्स, फार्मर्स थे। उसी में से जो रिच मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, रिच मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट के, जैसे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑल दीज वर द कंसीडर्ड एज अ मिडिल क्लासेस दैट टाइम। तो ये सब, और आज भी कंसीडर किए जाते हैं, तो डॉक्टर्स और लॉयर्स वगैरह। तो ये जो नया ग्रुप इमर्ज हुआ मिडिल क्लास, इस ग्रुप की एक थिंकिंग थी। वो थिंकिंग ये थी कि भाई देखो, ये जो आप बोल रहे हो वेजेस वगैरह की कि जो हमें टैक्सेस पे करना पड़ रहा है चर्च को, या अगर हमें टैक्सेस पे करना पड़ रहा है राजा को, तो ये जो टैक्सेस है सबको इक्वल पे करने को बोलो, नोबैलिटीज को भी पे करने को बोलो, क्लर्जीज को भी पे करने को बोलो, और साथ ही साथ हम भी पे करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो टैक्सेस एक्सटेम्प्टेड किए गए हैं, जो एक्सटेम्प्टेड किया गया है जिनको टैक्सेस से, जैसे फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, क्लर्जी और नोबैलिटीज को, उनको वो उन्होंने खंडन किया, उन्होंने रिफ्यूट किया दैट दे हैड नो राइट टू टेक दैट प्रिविलेजेस। कोई भी प्रिविलेजेस किसी भी व्यक्ति को जन्म से नहीं दिए जाने चाहिए। ये प्रिविलेजेस उसके कर्मों के आधार पर होने चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन हिज और हर मेरिट। किसी भी व्यक्ति के जो प्रिविलेजेस है या जो भी उसको फायदा मिल रहा है, उसके मेरिट, उसके काम करने के तरीके में, उसके काम करने के तरीके से मिलने चाहिए, उसके कामों के द्वारा, उसके वर्क के बेसिस में मिलना चाहिए, ना कि उसके बर्थ के बेसिस में। ठीक है, मतलब यह है कि अगर मैं समझ लो नोबल फैमिली या क्लर्जी में पैदा हुआ तो मुझे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, मैं उल्टा टैक्स लूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं फार्मर्स या यदि मैं ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और प्रोफेसर्स के घर में पैदा हो गया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके की ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, लोगों ने क्या बोला, ताकि थर्ड क्लास जो है या थर्ड स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली थोड़ा स्टेबल हो जाए, जो पीसेंट्स है, फार्मर्स है। तो इस थर्ड क्लास ने या थर्ड स्टेट ने या मिडिल क्लास ने ये बोला कि अब से जो प्रिविलेजेस है उसको आप जन्म के बेसिस में मत दो, इट शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। इतना क्लियर हुआ ना। अब एक बात और याद रखना कि ऐसा नहीं है कि कई बार रेवोल्यूशंस हुए, कई बार रेवोल्यूशंस हो चुके हैं फ्रांस में 1789 के पहले, लेकिन उस समय कोई भी बेसिक या एक मजबूत बेस नहीं था, है ना। या तो जो रेवोल्यूशन कर रहे थे वो अनएजुकेटेड थे, या तो वो रिच नहीं थे, तो उनकी रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था या सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, बट ये जो मिडिल क्लास ऑरिजिनेट हुई, इस मिडिल क्लास ने जब 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब देखो, ये मिडिल क्लास ने अपोज किया, है ना। ये मिडिल क्लास का ये मिडिल क्लास अब कैसे जनरेट हुई, ये सुनो। होता क्या था कि कई सारे ऐसे थिंकर्स थे फ्रांस में नहीं, ऐसे कई सारे थिंकर्स थे, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक्वस रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ऑल दीज थिंकर्स ने कुछ बुक्स और अपने पर्सपेक्टिव्स और पैम्पलेट्स रिलीज करे थे, है ना। पर्सपेक्टिव मतलब अपने नजरिया, है ना। तो व्यू पॉइंट को अपने रिप्रेजेंट करे थे अपनी बुक्स में। तो अब मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। देखो, जॉन लॉकी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने जॉन लॉकी ने कहा था कि राजा का जो दैवीय अधिकार है, मतलब राजा को हम जो भगवान मानते हैं, वी कंसीडर किंग एज अ, उस समय राजा को भगवान माना जाता था। किंग इज कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, उसे भगवान का क्या माना जाता था, रिप्रेजेंटेटर, है ना। रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं वो भगवान को हमारे सामने, मतलब जो किंग ने कह दिया वो सुप्रीम है, अब उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ने किंग को कहा है, ऐसा लोग समझते थे। तो उसने, जॉन लॉकी ने अपनी बुक में इस चीज़ को रिफ्यूट किया दैट जो हम डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप मानते हैं ना, वो थ्योरी जो है वो गलत है, पहली बात। अब आते हैं जीन जैक्वस रूसो की बुक में। जीन जैक्वस रूसो भी एक थिंकर थे, ठीक है। जीन जैक्वस रूसो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जैसा आज हम इलेक्शन करते हैं और गवर्नमेंट चुनते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली वही था। क्या था कि जब हम व्यक्तियों को चुनेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मोनार्की को क्या किया, मोनार्की को एक तरह से मोनार्की की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया मोनार्की को, और उन्होंने ये कहा कि मोनार्की इज नथिंग गुड, कुछ भी गुड नहीं है मोनार्की में, नथिंग इज गुड इन मोनार्की। तो मोनार्की को उन्होंने क्या किया, अबैंडन करने की बात कही, मोनार्की को क्रिटिसाइज किया, मोनार्की की कई सारी स्पेशल फीचर्स को उन्होंने क्या किया, रिफ्यूट किया, और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सिटीजन और उसके रूलर के बीच में, कि सिटीजन जो है उसके रूलर को चुने और रूलर क्या करे, सिटीजन के लिए काम करे, ठीक है, जैसे आज हमारी सरकार करती है हमारे लिए। मॉन्टेस्क्यू की अगर मैं बात करूं, मॉन्टेस्क्यू इज ऑल्सो अ थिंकर,
ऑल दीज थ्री पर्सन्स आर थिंकर, विचारक जो अपनी बातों को लिखे और जिन्होंने रेवोल्यूशन को और बहुत अच्छा बनाया। हाँ, एक बात और, इनमें से कई थिंकर्स रेवोल्यूशन के टाइम पे जिंदा नहीं थे, इनकी बुक बस थी, तो इनकी बुक से इंस्पायर्ड हुए लोग, ठीक है। कई सारे बुक में कहीं मेंशन नहीं है कि इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, कब मरे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन एक्स्ट्रा दैट इसमें से कई जो थिंकर्स थे वो मर चुके थे रेवोल्यूशन के पहले, और कई फ्रांस के भी नहीं थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो थिंकर्स की बुक्स थी, जैसे आज हम अमेरिका की कोई बुक मध्य प्रदेश में बैठ के या इंडिया में बैठ के रीड कर पा रहे हैं ना, वैसे ही उस समय भी बुक यूरोप में घूमती रहती थी, कई सारी लाइब्रेरीज थी, उन लाइब्रेरीज में ये बुक रीड की जाती थी। तो ये बुक जो थी मॉन्टेस्क्यू की, वो थी स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि देश या कि कानून के द्वारा किसी देश को चलाया जाए, राजा के द्वारा नहीं, कानून के द्वारा किसी देश को चलाया जाएगा तो देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो इस मॉन्टेस्क्यू ने ये एक्सप्लेन किया। तो ये तीनों थिंकर्स और भी कई सारे थिंकर्स थे, ठीक है। उन थिंकर्स के नाम आप लोगों को एक्स्ट्रा में बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो अभी इतना याद रखिए, जॉन लॉकी, जीन जैक्वस रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों थिंकर्स जो आपकी बुक में मेंशन है, इन तीनों थिंकर्स की बहुत सारी जो बुक्स थी, उसने एक नया व्यू पॉइंट जनरेट किया, किसको, मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास ने कई सारे पर्सपेक्टिव जनरेट हुए, लोग अब अच्छी तरह से थोड़ा साइंटिफिकली सोचने लगे कि हाँ, राजा क्यों, हम क्यों नहीं सरकार बना सकते, राजा क्यों बेफालतू में टैक्सेस इंक्रीज कर रहा है, या राजा क्यों बेवजह हमारे ऊपर रूल करता है, या क्यों उसे किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेजेस दिया जाता है जन्म के आधार पर। तो इन सब चीज़ों का आंसर उनको इन बुक्स में मिला। जब इन बुक्स में मिला तो इनकी बुक्स को अब कैसे स्प्रेड होता क्या था कि जो बुक्स रहती थी, एक एजुकेटेड व्यक्ति कहाँ पढ़ता था, या तो जैसे हम आज के टाइम पे किसी कैफ़े में बैठ के कोई बुक, आज के टाइम पे कैफ़े में बैठ के हम टी वगैरह पीते हैं, तो वैसे ही लोग क्या करते थे, कैफे में बैठ के जब टी पिया करते थे तो जो है ना, तो क्या व्हेन दे आर सिपिंग अप टी, तो क्या होता था, जो एजुकेटेड पीपल रहता था वो उस बुक को बहुत लाउडली रीड करता था, ताकि एजुकेटेड लोग भी उसको समझ पाए और पढ़ पाए, है ना। तो होता क्या था कि इनकी जो थिंकिंग्स है वो इसी तरह से स्प्रेड हुई, और इस स्प्रेड होने के कारण मिडिल क्लास में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जनरेट हुआ। जब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जनरेट हुआ तो उन लोगों ने इन सब के बारे में सोचा कि प्रिविलेजेस हटाओ, ये सब करो, और जिसके कारण लोगों ने रेवोल्यूशन किया 1789 का, है ना। तो मिडिल क्लास का एनविसेजेस आपको समझ में आ गया होगा। इतना मेरे हिसाब से आपका आज के लिए टॉपिक कंप्लीट है। इस टॉपिक के 3 टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाए, क्या क्या, टैक्सेस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल टू सर्वाइव, एंड द लास्ट वन इज ग्रोइंग एनविसेजेस। आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है।